distinguished officers, respected guests, representative of various government departments, NGOs, students and beneficiaries whose presence has added immense dignity and significance to today's occasion. I am Ritesh Kumar Srivastava, Additional District and Sessions Judge FTSC Boxo Kashipur, and it is my privilege to co-anchor today's program with Ms. Dipali Sharma, Additional District and Sessions Judge and Special Judge at APS Udham Srinagar. Together we extend to each one of you a warm, cordial and heartfelt welcome. We sincerely hope that today's program will further strengthen our shared commitment to justice, legal awareness, social welfare and public service. Once again, a very warm welcome to all of you. ये जुल्फ ये जुल्फ बर्दोश कौन आया, ये जुल्फ बर्दोश कौन आया, ये किसकी आहट से गुल खिले हैं, महक रही है फिजाए हस्ती, तमाम आलम बहार सा है. Who is this noble presence whose arrival has made the blossoms bloom? The very air is pregnant as though the entire world has turned into spring. Today, we are truly blessed by the gracious presence of the distinguished honorable judges of Honorable High Court of Uttarakhand, along with the gracious presence of the esteemed spouses of their lordships. Their august presence has transformed this gathering into an occasion of immense inspiration, dignity, warmth, and pride. We are deeply honored and privileged to welcome them to this multi-purpose camp at Pantnagar. तालियां बजाएं, तालियां बजती रहनी चाहिए. The ceremonial procession symbolizes the majesty of justice and the unwavering faith reposed by the people in the rule of law. Ladies and gentlemen, kindly maintain decorum while the dignitaries are escorted to the stage. The Constitution of India guarantees justice, social, economic, and political to every citizen. The legal services authorities across the nation strive tirelessly to transform this constitutional promise into a living reality through legal awareness, legal aid, mediation, lok adalat, and community outreach. Today's multi-purpose camp is a meaningful reflection of that constitutional mission. May I request the Registrar of G.B. Pant University also to come on the stage, please. Collective spirit of patriotism. May I respectfully request everyone present to rise for the rendition of Vande Mataram to be followed by the national anthem. Kindly remain standing until both presentations. Outreach programs, the legal services institution strive to ensure that justice is not a privilege for a few, but a right guaranteed to every. Lighting of the lamp symbolize the trump of the truth over ignorance, hope over despair, and justice over injustice. May this sacred flame continue to inspire us in our collective commitment to uphold the ideals enshrined in our Constitution. Ladies and gentlemen, may we acknowledge this solemn and auspicious moment with a gracious round of applause. तालियों से as the ceremonial lamp spread its radiant light, we now invite you to immerse yourself in the melodious welcome song presented by the talented students of Government Girls Inter College. The custodians of this very festival today. Our Honorable
Chief Guest, Mr. Justice Manoj Kumar Tiwari, Senior Judge, Honorable High Court of Uttarakhand, and Chairman, State Legal Service Authority, Uttarakhand. Our Honorable Guest of Honor, Mr. Justice Rakesh Thapliyal, Judge, Honorable High Court of Uttarakhand, Chairman, High Court Legal Service Committee, and Administrative Judge for District Udham Srinagar. Our Honorable Special Guest, Mr. Justice Alok Maharaji, Judge, Honorable High Court of Uttarakhand, respected Mrs. Manju Tiwari, spouse of Honorable Mr. Justice Manoj Tiwari, respected Mrs. Haripriya, spouse of Honorable Mr. Justice Alok Mahar, and Mr. Tanmay Tiwari, learned advocate, Honorable High Court of Uttarakhand, Member Secretary, SLSA Uttarakhand, my colleagues present here, ADM Udham Srinagar, Mr. Pankaj Upadhyay, Additional SP Udham Srinagar, and SSP also, Sri Ajay Ganpati ji, Registrar, Patnagar University, the officers of various departments participating in this mega camp. के माध्यम से हम समाज के उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो कानून की अज्ञानता के कारण या अपने अधिकारों की अज्ञानता के कारण पिछड़े हुए हैं। कानून में एक बड़ी प्रसिद्ध युक्ति है, इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंसिया लेजिस नेमिनम एक्सक्यूजेट। का मतलब होता है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। मतलब हमारे देश का कानून ऐसा है कि अगर कोई बच्चा एक दिन का पैदा होता है तो उससे भी ये अपेक्षा करता है कि वो देश के सारे कानून जानता है। एक दिन का बच्चा, ये संभव तो है नहीं वैसे, पर सिर्फ आपराधिक विधि में डॉली इनकेपेक्स बोलते हैं। अगर 7 साल का कोई बच्चा है तो लॉ ये मान के चलता है कि वो कोई अपराध नहीं कर सकता। बाकी आप सब यहाँ जितने बैठे हैं, शायद एक बच्ची जो यहाँ टहल रही है उसको एग्जेम्पशन है, बाकी किसी को नहीं है इस बात की छूट कि वो ये कह पाए कि उसे कानून का ज्ञान नहीं है। तो कानून का ज्ञान देना हमारी प्राथमिकता है। ऐसे कैंप के माध्यम से हम लोगों में कानून की जागरूकता फैलाते हैं, लोगों को निःशुल्क कानूनी पुस्तकें बांटते हैं। अभी माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के निर्देशन पे हमने बहुत सारी कानूनी पुस्तकों की ई बुकलेट हमने तैयार करी। अब एक सिंपल मोबाइल के माध्यम से आप QR कोड स्कैन करके जो देश के नए नए आपराधिक कानून हैं उनके बारे में या बहुत सारे कानूनों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। बाहर आपको बुकलेट भी यहाँ सर्कुलेट हो रही होगी, QR कोड भी लगा होगा। डिजिटल जमाना है, तो माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के निर्देशन पे हमने अपने आप को डिजिटली अपडेट किया। ऐसे ही आप लोगों की सहायता करने के लिए हमारे पास हर जिले में पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं। यहाँ भी बहुत सारे पैरालीगल वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं जिनका काम गरीब और अज्ञान लोगों तक पहुंचना, गांव-गांव तक पहुंचना, और पूरे राज्य में लगभग 3000 पैरालीगल वॉलंटियर्स काम करते हैं। 200 से अधिक पैरालीगल वॉलंटियर्स इस जिले में भी हैं। और एक और बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के निर्देशन पे हमने करी कि 1 विलेज 1 PLB प्रो बोनो स्कीम लॉन्च करी, और आज हमारे पास हर गांव से एक PLB है और लगभग 16,500 पैरालीगल वॉलंटियर्स काम करते हैं, जो हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। इतने पैरालीगल वॉलंटियर्स किसी राज्य में काम नहीं करते जितने कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति कुछ अलग है, तो माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय का निर्देशन था कि क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव की दूरी या मुख्यालय से गांव की दूरी इतनी अधिक है कि शायद पूरा दिन निकल जाए पहुंचने तक, तो हम पैरालीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हर जिले में लीगल एड के लिए हम फ्री लीगल एड देते हैं। जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं या जो भी व्यक्ति किसी शारीरिक बीमारी के कारण पिछड़ा है या सैनिक है, रिटायर्ड सैनिक को अभी हम लोग हमारे यहाँ सेवानिवृत्त सैनिकों को भी फ्री लीगल एड है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी है, जो विकलांग हैं, जो या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, या जो महिलाएं हैं, SC ST कम्युनिटी के लोग हैं,
बच्चे हैं, उन सबको निःशुल्क विधिक सहायता है। अगर कोई व्यक्ति इस कैटेगरी में नहीं भी आता, उसकी 3 लाख रुपए की आय है, तो वो भी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। हमारे पास 3 सिस्टम काम करता है इस जिले में। एक तो पैनल लॉयर है हमारे पास, एक लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है, बहुत प्रभावी लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है जो 13 जिले में काम करता है, और इसके अंदर अतिरिक्त एमाइकस क्यूरी भी है, हर जिले में एमाइकस क्यूरी। तो निःशुल्क विधिक सहायता का पूरा एक पैनल उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति जो जिसके पास आर्थिक साधन नहीं है या जो इस कैटेगरी में फॉल करता है, वो न्यायालय से निःशुल्क विधिक सहायता ले सकता है। आपके नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय जा सकता है या सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को लिख सकता है। हम सिर्फ लीगल एड तक सीमित नहीं है, बल्कि हम समाज के सैकड़ों अनेकों तरह तरह के प्रॉब्लम्स में भी हमने अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा। केवल एक शिक्षण संस्था नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की भावना का प्रतीक है। और यही नहीं, यह हरित क्रांति का जनक भी है। इस विश्वविद्यालय ने देश को अनेक प्रतिभाएं प्रदान की हैं और आज भी यह युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान कर रहा है। आज का यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान में निहित सामाजिक न्याय की भावना को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हमारे संविधान की प्रस्तावना हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प प्रदान करती है। संविधान का अनुच्छेद 39A यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक अथवा अन्य किसी कारण से कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। इसी संवैधानिक उद्देश्य को साकार करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया और राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तहसील स्तर पर विधिक सेवा संस्थाओं की स्थापना की गई। इन संस्थाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय केवल न्यायालय तक पहुंच रखने वाले लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच हो। आज का यह शिविर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित नालसा जागृति योजना 2025 एवं नालसा डॉन स्कीम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।